good morning everyone. Today we are going to study about the addition and subtraction of the metric measures. Okay, for metric measures we have to learn how to write them in the column and then we will add. They are the normal addition and subtraction, nothing much more in it, but we will do on the board. So in last exercise we learned kilo, hecto, deca, base unit and then deci, centi and milli. What are the base units? Base units are length. For length we have meter. For mass we have, for length we have meter, not liter. For length we have meter. For mass we have gram. Very good. And now for capacity. For capacity we have liter. And liter's short form is must be in L letter must be in capital. L letter must be in capital. आपने अगर L letter small में लिखा मैं काट दूंगा, ठीक है, मैं उस पर नंबर नहीं दूंगा. आपने याद करने का भी तरीका ढूंढ लिया होगा. आप इसको याद कर सकते हो. कल हमें आपने याद कर सकते हो. कल हमें 2 चोर दिल्ली में 2 चोर मिले. आप ये याद कर सकते हो. कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले. सो कल मतलब किलो, हमें मतलब हेक्टो, डी जो फर्स्ट डी आएगा वो डेका के लिए है. हमें दिल्ली में एम इज फॉर बेस यूनिट एंड डी इज फॉर डेका डेसी. सो आप ऐसे याद कर सकते हो. कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले. सभी लोग एक बार बोलेंगे कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले. तो आप ऐसे आराम से लर्न कर सकते हो और आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कन्वर्जन में. दीज आर द लार्ज यूनिट्स मैंने कल बताया था एंड दीज आर द स्मॉल यूनिट्स. आप लार्ज से स्मॉल में जाते हो तो आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है या फिर मल्टीप्लाई करना होता है. प्लीज मुझे जल्दी से बताएंगे. इफ यू हैव टू गो फ्रॉम लार्जर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट देन यू हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई. जल्दी बताएंगे बेटा. आप अगर वेरी गुड मल्टीप्लाई वी हैव टू डू विद द मल्टीप्लाई ऑफ द मल्टीपल ऑफ 10. हम 10, 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. और इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलर टू द लार्जर देन वी हैव टू divide. Then we have to divide. Very good beta Keshav. Then we have to divide. So आप इसको याद कर सकते हैं. मैं एक बार और फिर से आपको बताता हूं. कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले. ठीक है, ये आप सब लोग याद कर सकते हो. These are the prefix. These are the prefix. एक बार फिर से हम बोलते हैं. कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले. जो फर्स्ट डी आएगा ऊपर से फर्स्ट डी डेका के लिए है. आप इसे तुरंत डी ए लिख दें. और जो नीचे से डी आ रहा है ये हमारा डेसी के लिए है. और बीच में जो एम आएगा ये मीटर के लिए है या फिर आप इसको बेस यूनिट के लिए भी बोल सकते हैं. Now we are moving to the exercise 9.2. You can all see on the board how will we write them in the column and then we will add. बहुत ज्यादा इजी है because addition subtraction सबको आता है. ऐसा कोई भी नहीं है जिसको addition subtraction नहीं आता है. जिसको addition, those who do not know the subtraction and addition, please beta, please learn how to add and subtract. If you have problem in addition and subtraction, you can also tell me so I can teach you. Okay beta, so it is a normal addition and subtraction. No need to do anything else. आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है. Normal addition and subtraction की तरह है. Let's see question number 1, A part. In question number 1, we have to write the following metric measures in the column and add them. We have to add them by writing them in the column. So A part is 34 किलोमीटर. देखो मैंने दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं. के भी स्मॉल में है और एम भी स्मॉल में है. लिखने में गलती नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो करेक्शन के लिए तो मेरे पास ही आएगी. बिल्कुल काट दूंगा, दोबारा लिखवाऊंगा.
और 30 मीटर एंड 371 किलोमीटर and 5 meter, and we have 3 kilometer and then 350 meter. Now listen very carefully, how will we write them in the column? How will we write them in the column? That is very important. We just have to make two columns. One is for kilometer and next is for meter. हमें दो कॉलम बनाने हैं. हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, किलोमीटर एंड मीटर. वी हैव टू थिंग्स, किलोमीटर एंड मीटर. We have kilometer and meter. So we have to just make two columns, kilometer and meter. We made two columns. हमने दो कॉलम बना लिए. Now we just have to write what are the kilometers we have and then what are the meters we have. Now in first part, how many kilometers we have? In first part, how many kilometers we have? जल्दी से बताएंगे बेटा. In first part, how many kilometers we have? देखो यहां पे हमें वन लाइन लीव करनी है for carry. Right? मैं हमेशा वन लाइन लीव करवाता हूं for carry. We will leave. Yes. First we have 34 kilometer. Now how many meters are there? On which page? On which page? It is on the page number 132 beta. Okay. Now on the how many meters we have? 30 meters. जो किलोमीटर है वो हमने किलोमीटर के नीचे लिखे हैं, जो मीटर है वो हमने मीटर के नीचे लिखे हैं. We have 34 kilometers, then we write them under the kilometer. We have 30 meters, we write them under the meter. Right? In next, how many kilometers are there? How many kilometers are there? Write fast beta in the chat. We have 71 kilometers. How many kilometers? 71 kilometers. And how many meters are there? 5 meters. अभी आप देखो जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं उसमें हम यहां पर फर्स्ट डिजिट को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें हमेशा राइट हैंड साइड से लिखना होता है, तो हमने हमेशा वंस से लिखना है, तो हमने टेंस वाली जगह को छोड़ दिया है. ये हमेशा ध्यान रखेंगे. नाउ इन लास्ट वन हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर? 3 kilometers. Very good. And next we have 350 meters. So 350. Now we have to add them. जहां पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है वहां पे हम क्या लिख देंगे? Where we do not have any number, वहां पे हम क्या लिखेंगे? We will write 0. Yes, 7 के नीचे 0 आ जाएगा. यहां पे भी 0 आ जाएगा बिकॉज 3 के ऊपर कुछ नहीं है. यहां पे भी 0, यहां पे भी 0. ठीक है. नाउ यू कैन ऐड देम वेरी इजीली. प्लस आप कर सकते हो इन सबको एडिशन करेंगे. 0 + 5 + 0 is 5. 3 + 5 is 8. 0 + 0 + 3 is 3. And here we have 8. 7 + 3 10. 1 carry and there will be 1. So the answer is 108 kilometer and 385 meter. Right? So the answer is 108 kilometer and 385 meter. Right? So now B part is 243 kiloliter. देखो K will be small and L will be capital for kiloliter, and then we have 3 liter. L will be capital. Now we have 5 kilometer and 5 kiloliter and 313 liter. 313 liter. Now you have to make the columns. आपको कॉलम्स बनाने हैं तो आप क्या क्या नाम लिखोगे? What are the columns you have to make बेटा? How many columns you have to make? You have to make 2 columns. आपको कितने कॉलम्स बनाने हैं? 2 कॉलम्स बनाने हैं. और कौन कौन से कॉलम बनाने हैं? फर्स्ट कॉलम इज ऑफ किलोलीटर. देखो हमारे पास किलोलीटर है,
हाँ जी सर, किलोलीटर है। नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ लीटर, नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ लीटर। देखो हमारे पास लीटर भी है दोनों में, तो हमें एक कॉलम किसका बनाना है, लीटर का बनाना है। ठीक है, वी मेड टू कॉलम्स। नाउ हाउ मेनी किलोलीटर्स आर देयर? इन फर्स्ट वी हैव 243 किलोलीटर्स। हम सबसे पहले एक लाइन लीव करेंगे, और लाइन लीव करने के बाद में वो किसके लिए छोड़ी है हमने, कैरी के लिए लीव कर दिया, राइट। हाउ मेनी किलोलीटर्स वी हैव? 2 4 3 किलोलीटर्स। Now how many liters we have? Good morning beta Athar. How many liters we have? 3 liters. Very good. In now next second one we have 5 kiloliters. How many kiloliters? 5 kiloliters. Now tell me, क्या मुझे 5 यहां लिखना है? क्या मैं ये 5 यहां लिखूंगा? Yes, you can see on the board. मैंने 5 कहां लिखा है? 100th पोजीशन पे। मैं ये 100 पोजीशन पे लिखूंगा, ये 1st पोजीशन पे लिखना है। मुझे बताओ, मुझे 5 1st पोजीशन पे लिखना है, 10th पोजीशन पे लिखना है, या 100th पोजीशन पे लिखना है? एवरीवन मस्ट से ऑन द 1st पोजीशन। तो मैं यहां से इस 5 को निकाल देता हूं। वी मस्ट ऑल राइट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर आप 1st टेंस में नहीं फंसना चाहते हो तो आप कहां से लिखोगे, राइट हैंड साइड से लिखोगे, और यहां पे हम 5 लिख देंगे। नाउ फॉर द लीटर्स, नाउ फॉर द लीटर्स, हमारे पास है 313 लीटर्स, तो मैं ऐसे लिख दूं 313 लीटर्स। इज इट राइट? 313 लीटर इज राइट। नाउ इज इट राइट? नो, दित्या इज सेइंग नो। एनीवन इज सेइंग इज इट राइट और नॉट? एनीवन सेइंग इट इज राइट? एनीवन, कोई भी कहना चाहेगा 313 जो सर ने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है? नो, एवरीवन इज सेइंग, अर्णव इज आल्सो सेइंग नो। नाउ टेल मी, अगर मैं इसको if I write like this 313, then is it right? क्या अब ये सही है? 313? No, Ditya is still saying no. Then how बेटा कैसे सही होगा? 3 must be at 3, right? हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? Ones लिखना होगा। So who is ones here? This is ones position, this is tens, and this is 100. So who is the at ones? 3 as at ones. Now on tens we have 1. Now again we have 3. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है राइट हैंड साइड से ही लिखना है। आप लोग लिखने में कोई भी गलती नहीं करेंगे बेटा, लिखने में गलती करोगे तो आंसर भी गलत आएगा, एंड दिस विल बी फॉर कैरी, राइट। व्हाट इज मीनिंग बाय कैरी? कैरी का क्या मतलब होता है? चलो कौन बताएगा? कैरी क्या होता है? सर यू विल ऑल्सो एड अ पॉइंट इन बिटवीन। बेटा पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने पॉइंट अभी तक पढ़ा नहीं है। ओके, इफ यू स्टडीड अबाउट द डेसिमल पॉइंट और पॉइंट, देन यू कैन ऐड पॉइंट, राइट। आपने डेसिमल अभी तक नहीं आपने पढ़ा है तो आप वहां मत जाओ, वो चैप्टर ही अलग हो जाएगा। फिर डेसिमल में तो हम बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, है ना। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां जाना नहीं है, क्योंकि हमारे वो भी सिलेबस में नहीं है। अगर मैं डेसिमल को इंट्रोड्यूस करूंगा तो 2-4 बच्चे तो समझ जाएंगे कि ठीक है हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी जो क्लास है उसके ऊपर से चला जाएगा, है ना। दैट विल बी अ बाउंस फॉर देम कि ये डेसिमल कहां से आ गया, ये पॉइंट कहां से आ गया। सो हम उस चीज को लेकर चलेंगे जो सबको समझ में आएगा, है ना। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। नाउ ऐड देम ऑल। अब हम इसको ऐड कर देंगे। सो 3 + 3 is 6, 1 3 8। सर यहां तो कुछ भी नहीं दे रखा, फिर आप ऐड कैसे कर रहे हो? यहां पे कुछ भी नहीं दिया हो तो क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी नंबर फॉर हियर। व्हाट विल बी राइट? हमारे पास या कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड तनिष, वेरी गुड अर्णव, वेरी गुड दित्या। वी हैव टू राइट 0। हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड यू हैव टू मेक कॉलम्स नाउ। आपकी क्लास 4th है, आपको सिर्फ कॉलम्स बनाने हैं और ऐड करने हैं, और लास्ट में क्या लिख देंगे? सो हाउ मेनी किलोलीटर्स वी हैव? 248 किलोलीटर्स एंड 316 लीटर्स। आप पॉइंट यूज कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वहां पे ये मेजरमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग उसमें नहीं फंसेंगे। हमें सिर्फ इतना है, किलोलीटर लिखा है या किलोलीटर या लीटर लिखा है या लीटर लिख दिया, प्रॉब्लम खत्म। हमें कुछ और नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू सबट्रैक्ट द फॉलोइंग metric measures. The question number 2, A part. The A part is 80 meters no 43 meters
43 meters and 50 centimeters from 80 meters and 50 meters. So this will be your question. क्या आप फ्रॉम को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू गेट कंफ्यूज विद द फॉर्म फ्रॉम? हाउ मेनी ऑफ यू गेट कंफ्यूज? देखो बेटा, सर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? यू मस्ट नॉट लाई विद द टीचर. तो आप मुझे ये बताओ, ये फ्रॉम देख के कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है? कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? समवन मस्ट गेट कंफ्यूज. तो आपको क्या करना है? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है. सब्ट्रैक्शन किस में से करते हैं? एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कंफ्यूज क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? आप फ्रॉम को भूल जाओ, है ना? आप फ्रॉम को भूल जाओ कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. फ्रॉम लिखा हुआ आ गया मतलब सब्ट्रैक्शन करना है. तो हम क्या करेंगे, एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब आप मुझे ये बताओ 43 बड़ा है या 80 बड़ा है? जल्दी बताओ. यू कैन टेल मी विच वन इज बिगर, 43 और 80? जो बड़ा है उसे पहले लिखेंगे और जो छोटा है उसे बाद में लिखेंगे. सिंपल सा मेथड है हमारा कि हमें एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है. आपको 10 में से 7 माइनस करना होता है या 7 में से 10 माइनस करना होता है? आपके पास 2 नंबर है, यू हैव 7 and 10. तो बताओ किसको किस में से माइनस करोगे? जो हमारे पास बड़ा है. हमें 10 में से 7 को माइनस करना है, मतलब एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करना है. आपके सिलेबस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. तो आप फ्रॉम को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो. फ्रॉम को देख के कंफ्यूज नहीं होने से क्या होगा कि आपके दिमाग में बस एक ही चीज है कि हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है. हमें एक बड़े नंबर में वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अ बिगर स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ larger number. So which one is larger here? Which one is larger here? How many numbers we have? Columns we have to make, one for meter and one for centimeter, and C is small. C हमारा छोटा ही है. Okay, how many columns we have? We have 2 columns, meter and centimeter. Now how many meters we have here and here? 80. तो अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है? Subtraction करना है. 1 line we will leave for borrow. Right, we will leave 1 line for borrow. Right? Now, which one is bigger? मैं यहाँ पे पहले कौन सा नंबर लिखूं? मुझे बताओ, आप ही लोग बताओगे. 80 या 43? सबसे पहले कौन आएगा, 80 या 43? जल्दी बता दो मुझे. Which number must come here? यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर लिखना है? 80 और 43. कौन सा बड़ा है? जो बड़ा है वो लिखेंगे पहले. हमें फ्रॉम का मतलब नहीं पता क्या होता है, बस फ्रॉम से हमें ये पता लग गया कि इन्हें सब्ट्रैक्शन करना है. Right now, अब हमें क्या लिखना है? 80. Everyone is saying 80. That's why I am writing 80 here. अगर आप लोग नहीं बताते तो मैं नहीं लिखता. अब हमें क्या नंबर लिखना है यहाँ पे? How many meters we have here? How many meters we have here? हमें यहाँ पे कितना लिखना है अभी? 42 और 43 is there. देखते बेटा 43 है 42 है. देखो कंफ्यूज मत किया करो तुम लोग मुझे, है ना? वैसे भी मेरे पास बुक नहीं है तो प्रॉब्लम रहती है. तो 43 is here. Right? अभी सेंटीमीटर पे आ जाते हैं. सेंटीमीटर पे ऐसा नहीं करेंगे. जो 80 के साथ में कौन है? 80 के साथ में 50 है तो 50 लिखेंगे. 43 के साथ में कौन है? 50 है तो 50 ही लिखेंगे. ठीक है, बस हमें फर्स्ट वाले नंबर को देखना होता है, बाकी वाले नंबर्स वही लिखते हैं, है ना? नाउ सब्ट्रैक्ट देम. 50 minus 50, 0, 0. Now take a carry. Now we have to take a carry or borrow. Borrow. कितने बच्चे कैरी लेते हैं यहाँ पे? We have to take a borrow or carry. जल्दी बताओ. We have to take borrow or carry here. हमें यहाँ पे borrow लेने हैं या carry चाहिए? हाँ जी, विराट जी कुछ बोल रहे हैं. हाँ जी विराट बोलिए. Borrow. We have to take a borrow. So this will become 7 and this will become 10. Now we will subtract 10 minus 3. We will get 7 and 7 minus 4 we will get 3. And so we have for 37 meters. Okay, so the answer is 37 meters. कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई है? वेरी गुड.
दैट्स अ गुड. नाउ बी पार्ट इज इन योर होमवर्क. बी पार्ट में जल्दी से होमवर्क लिख लेंगे बेटा. एंड वी आर मूविंग टू द पार्ट सी. अब हम पार्ट सी पर जाएंगे. ओके, लेट्स मूव टू द पार्ट सी. बी पार्ट इज इन योर होमवर्क. राइट डाउन फास्ट. बी पार्ट इज इन योर होमवर्क और जल्दी से उसको रफ कॉपी में ही सॉल्व कर लेंगे. राइट, इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी इन चैट बेटा. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख सकते हो. आई कैन रीड बेटा. एंड आई नो यू कैन टाइप मैसेजेस, प्रॉपर मैसेजेस with your friends and relations. So you can also type your question in chat also. Okay, now we are moving to the part C. Sir, please unmute me. How can I unmute you, beta? Question number C. Question number C is we are having 68 grams, right? 68 grams, 113 milligram, 113 milligram from 82 gram and 200 milligram. Okay, now how many columns we have to make? We have to make 2 columns, gram and milligram. Only 2 columns, gram and milligrams. Now tell me which one is greater, 68 gram or 82 grams? Which one is greater and which one we have to write first? कौन बड़ा है और किसको पहले लिखेंगे? एक लाइन हम छोड़ देंगे बोरो के लिए. हाँ जी, चलो बता दो. 82, तो 82 लिख दो. 82 ग्राम्स एंड 200 मिलीग्राम्स. और सेकंड में कौन आएगा? 68 ग्राम्स एंड 113 मिलीग्राम्स. नाउ सब्ट्रैक्ट देम. अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो चलो बोरो लेना शुरू करते हैं. 2 भैया हमको बोरो दे दो. एंड 2 will become 1 and this 0 will become 10 and 10 will become 9 and this 0 will become 10. right? सही लिया है सर ने बोरो? क्या सर ने बोरो ठीक लिया है? जल्दी बताइए. 10 minus 3 is 7. 10 minus 3 is 7. 9 minus 1. वेरी गुड बेटा देवांग, थैंक यू कि सर ने बिल्कुल सही लिया है बोरो. आपने बता दिया, नहीं तो गलत हो जाता बेटा ये 0. नाउ वी आर मूविंग टू द ग्राम्स. यस, यहां आ जाओ अब जल्दी से. क्या हमें यहां भी बोरो लेना पड़ेगा? हाँ जी सर, यहां भी बोरो ले लीजिए. यहां क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. यहां 7 हो जाएगा. नॉट 12 में से हमने 8 को माइनस किया, विल गेट 4 एंड 1. किसी को भी सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बहुत ही इजीली सब कुछ हो. आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. अरे बहुत ही इजी है सर, जो दे रखा है वही करो. ए पार्ट में क्या दे रखा है? सॉल्व. 645 kg, 654 है 54, हाँ 654 kg and 702 grams प्लस, बहुत इजी है ये तो सब लोग कर लेंगे, 713 kg. अच्छा कौन नहीं कर सकते ये वाला पार्ट? जल्दी बताओ मुझे बेटा. तो उसके लिए हम लोग कर देंगे ग्राम. दिस इज इन योर होमवर्क बेटा. नाउ वी आर मूविंग टू द BCE. B, C and E for revision. Okay, now we are moving to the D part. Very important part is D. बहुत important part है बेटा D. Okay, we are moving to the part D. D part is saying 82 liters and 5 ml. Only 5 ml
L माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। 19 लीटर and 22 ml. Okay, so how many columns we have to make? One column for liter and one for milliliter. Let's make liter and milliliter. Please be at your concentration, please, on the board. So one line for carry, one line for carry. ओके, वन लाइन फॉर कैरी, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहां पे बोरो लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो बोरो। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सो द फर्स्ट नंबर इज 82 लीटर्स एंड 5 ml, एंड सब्ट्रैक्शन के बाद में कौन है? 19 liter and 22 ml. These numbers you have to subtract. These metric measures you have to subtract. Can you subtract 22 from 5? Can you subtract 22 from 5? क्या आप subtract कर सकते हैं 22 from 5? हाँ जी, कितने लोग कर सकते हैं? जल्दी बताइए विराट बेटा, जल्दी बताओ कितने लोग कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? जल्दी बताओ मुझे, कौन कौन कर सकता है? सिमरन कर सकती हैं। 5 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा सिमरन, यू कैन डू। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर दैट यू कैन सब्ट्रैक्ट, एंड दित्य कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम 5। वेरी गुड। क्या करेंगे बेटा अब हम यहां पर? बताओ मुझे जरा, क्या करना है हमें यहां पर? वी विल टेक अ कैरी फ्रॉम लीटर। देखो यहां पे हमें याद रखना है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। हाउ मेनी? 1000 मिलीलीटर। ओके, हाउ मेनी लीटर्स? 1 लीटर हैज 1000 मिलीलीटर्स। अब मैंने यहां से 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर पूरा ले लिया, तो 82 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 लीटर माइनस करो इस 82 में से। We will subtract 1 liter from 82. What will be? We have here 81. कितना बचेगा यहाँ पे? 82 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 81 बचेगा। क्या बचेगा? 81 बचेगा। किसको ये चीज समझ में आई कि आपने सर 82 में से 1 लीटर ले लिया तो आपको सिर्फ 81 बचा? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? आपने अगर 82 लीटर्स था आपके पास, 82 लीटर्स, मान लो आपके पास 10 लीटर्स थे, उसमें से हमने 1 लीटर ले लिया, तो कितना बचा आपके पास? इफ यू हैव लिसन हियर, इफ यू हैव 10 लीटर्स, राइट, और मैंने इसमें से 1 लीटर ले लिया, तो आपके पास कितना लीटर बचेगा? 9 लीटर बचेगा। 9 लीटर ही बचेगा ना। वही तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर हमने 82 में से 1 लीटर ले लिया, क्योंकि हमारे पास कितने लीटर है? 82 लीटर्स, और उसमें से हमने 1 लीटर ले लिया, तो कितना बचा? 81 बच गया। सबको ये समझ में आया? तनिष बेटा क्या हो गया? नहीं बचेगा? क्या प्रॉब्लम हो रही है? तनिष बेटा क्या हुआ? बताओ मुझे जरा सा, क्या समझ में नहीं आया? देखो सभी लोग बोल रहे हैं 81 लीटर्स बचेगा, और तनिष इज सेइंग नो। व्हाट हैपेंड बेटा तनिष? ठीक है, मैं अपनी क्लास के बाद आपसे पूछता हूं। ओके, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो ध्यान से सुनो। अब हमने 1 लीटर ले लिया, और 1 लीटर किसके बराबर है? 1000 ml के। किसके बराबर है? 1000 ml के। देयर आर 2 तनिष। देयर आर 2 तनिष। बेटा क्लास में टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा तनिष जो भी है बेटा भाग जाओ यहां से। यस, देयर आर 2 तनिष। तनिष इन मैथ्स, और दोनों का नाम भी सेम है। बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, बने रहने दो। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो इस 1000 मिलीलीटर, यहां से हमने जो 1 लीटर लिया है उसे हम यहां लेकर आ जाएंगे 1000 मिलीलीटर, है ना। हमने वहां से 1 लीटर लिया और यहां पे 1000 मिलीलीटर इसको दे दिया। तो अब मुझे बताओ ये कितना बन जाएगा? 5 के साथ में ऐड होकर 1005 बन जाएगा।
1005 बन जाएगा ना। सबको ये चीज समझ में आई कि अगर हमने, ध्यान से देखो, दोबारा करता हूं मैं, हमारे पास 5 ml पहले से है, 5 ml पहले से है, और यहां से हम 1 लीटर लेकर आ गए, मतलब 1000 ml लेकर आ गए। यहां से हम 1000 ml लेकर आए हैं और 5 ml हमारे पास पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आपके पास 5 ml पहले से है और 1000 ml वहां से लेकर आए हो, तो कितना हो जाएगा? 105 नहीं बेटा, 1005 होगा। कितना होगा? 1000 तो हम लेकर आए और पहले से कितना है हमारे पास? 5 ml। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5001, तो कितना हो जाएगा? 1005। दित्या बेटा 1500 नहीं, 1005 हो जाएगा। देखो यहां देखो, दोबारा देखो, 1 लीटर जो हम लेकर आए हैं वो किसके बराबर है? 1000 ml के बराबर है, और हमारे पास पहले से कितना ml है? 5 ml है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1005 ml हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 1005 ml। कितना हो जाएगा? 1005 ml हो जाएगा, 1005 ml। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? किस किस को समझ में आ गई ये बात? ठीक है, वेरी गुड। 1005 अब दित्या की समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट 5 minus 2, 3, 0 minus 2, तो we will have a carry, 10 will become 9 and this will become 10. Now 10 minus 2 will be 8 and here we will have 9. अब यहां आ जाते हैं हम। Now we will take a carry because 1 can't subtract 9, then it will become 7 and this will become 11. So 11 minus 9 will become 11 minus 9 will become, very good, 2, and 7 minus 1, 6. So the answer is 62 liter 983 milliliter. So the answer is 62 liter 983 milliliters. Okay? बहुत इजी है। 1 लीटर यहां से लिया है, 1000 ml इधर दे दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है ना? कैसे आया शब्द बेटा? सोए हुए थे क्या? 1000 कैसे आया? देखो हमारे पास यहां 82 लीटर्स था, 82 लीटर्स में से हमने 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर का क्या मतलब होता है? 1000 ml होता है। 1000 ml के बराबर होता है ना 1 लीटर? यस, 1000 ml के बराबर होता है। जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? शब्द बेटा यस। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और हमारे पास पहले से क्या था? 5 ml पहले से था, 5 ml पहले से था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1005 हो जाएगा। तो 1005 हम यहां लिखेंगे क्योंकि हमने 1 लीटर वहां से ले लिया, और इनको फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन इज एफ क्वेश्चन, और उसके बाद में हम आपकी क्वेरीज लेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज एफ क्वेश्चन, और उसके बाद में हम आपकी क्वेरीज लेंगे। दैट विल बी वेरी इजी टू बी टेकिंग अ क्वेरी। जिसकी भी जो भी क्वेरी है, बी रेडी विद योर क्वेरीज, सो वी विल हैव फन विद द क्वेरीज। सो द एफ पार्ट इज वेरी इजी। वी हैव 398 kg, K must be small, and then 100 grams minus 100 grams, right? Minus 100 grams. यही है ना क्वेश्चन? बहुत इजी है। So we will make two columns, kg and gram, kg and gram. So here we have a line for borrow, and we will write 398 kg here and then 100 grams minus, we do not have kg here and here we have 100 grams. तो हमारे पास kg में कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या लिखेंगे बेटा? If we do not have anything in kg, we will write what we will write here. अगर हमारे पास kg में कुछ भी नहीं है तो वहां क्या लिखेंगे? वेरी गुड दित्य सिंह, 0 लिख दो सर। ठीक है, 0 इतना फ्री है हमारे पास, इतना ज्यादा बल्क में है कि कहीं भी रख देते हैं उसको। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट देम।
Now 100 minus 100, 0, 0, 0. And here we will have 8, 9, 3. And this will be our answer. And this will be our answer. And part B, C and E is for revision. तो हम लोग रिवीजन में भी इन्हीं चीजों को कंटिन्यू करेंगे. बहुत इजी है बेटा, बस एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. डी वाला पार्ट वो मैंने आपको समझाया है.